Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Noor School and College, Mansehra. Dear student, in the last lecture we had discussed about the electrical iron. In electric iron, the current flow through the circuit and produces heat in the heater coils. As the coil heat up, the bimetallic strip bend away from the contact and electrical contact is broken down. When the break when there is the break of contact, the stop current flowing and prevent the temperature rising. And when the strip cool, it becomes straight and contact is made again. In this way, temperature is maintained. We also discuss about the effect of contraction and expansion of solid in our daily life, like in concrete road surface. We see that in road surfaces are laid on continuous stretch. They would crack due to expansion and contraction with changes in temperature. To avoid such damage, concrete road are laid down in section with small gap between them, and these gaps are filled with such a material which contract and expand like rubber. Second is railway track. The railway track are laid in section with gap between them that are joined by fish plate. If there is no gap between rail track, then thermal expansion will cause them to bend. We also discuss the next effect of thermal expansion and contraction of solid in bridges. Bridges are made up of steel girder which expand on heating. Gap are is kept between girder to allow the expansion. If there is no gap between girder, then expansion will cause the girder to bend. And last one is telephone wire. The telephone wire between two poles hang down in summer and become tight in winter. Electric wire between two poles are given certain amount of sag so that they contract in winter and expand in summer. डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम यूजेस ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे. यूजेस ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिक्विड्स. एज वी सी दैट द लिक्विड एक्सपेंड मोर एज कंपेयर टू सॉलिड. जितने भी लिक्विड्स होते हैं वो आपके पास सॉलिड के कंपेयर ज़्यादा एक्सपेंड होते हैं. फॉर एग्जांपल मर्करी एंड अल्कोहल विच आर यूज इन थर्मामीटर बिकॉज दे कैन एक्सपेंड. However, as the boiling point of mercury is very high and its expansion is also uniform, so that's why it is preferred over alcohol in thermometer. आपके पास जो मर्करी होता है इसका आपके पास बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और हाई होने की वजह से एक तो इसकी यूनिफॉर्म एक्सपेंशन होती है और इसीलिए ये आपके पास थर्मामीटर के अंदर यूज़ करते हैं. इसके अलावा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ वाटर एंड एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वाटर. एज वी सी दैट ऑल लिक्विड एक्सपेंड एज कंपेयर टू more as compared to solid. Liquid expand on heating and contract on cooling like solid and gases. But the expansion of water is very little different from expansion of other liquid. जितने भी आपके पास लिक्विड होते हैं ये आपके पास हीट करने से एक्सपेंड होते हैं और कूल करने से आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. लेकिन वाटर का जो बिहेवियर है वो बाकी लिक्विड के मुकाबले में थोड़ा सा डिफरेंट है. When water is heated from 0 degree centigrade to 4 degree centigrade, it contracts instead of expanded. जब कभी भी हम वाटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं तो ये आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होने के बजाय एक्सपेंड होता है. एंड व्हेन इट इज़ फर्दर हीटेड फ्रॉम 4 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट एक्सपेंड. इसके अलावा अगर हम इसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं तो ये आपके पास एक्सपेंड होता है. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, वेन एवर वी आर going to heat up water from 0 degree centigrade to 4 degree centigrade, it contract instead of expanding.
होना तो ये चाहिए था कि आपके पास ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता, बल्कि ये आपके पास एक्सपेंड हो रहा है। और अगर हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हीट करते हैं तो ये नॉर्मली लिक्विड की तरह बिहेव करता है। और स्टूडेंट, इसी बिहेवियर वाटर की इसी बिहेवियर को हम कहते हैं पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ वाटर। व्हाट इज़ पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ वाटर? जितना भी आपके पास बच्चों लिक्विड्स होते हैं, अगर हम इनको हीट करते हैं वो आपके पास एक्सपेंड होते हैं। जितना आप हीट ज़्यादा करेंगे तो उनकी एक्सपेंशन उतनी ही ज़्यादा होगी। जितना आप हीट रिमूव करेंगे या उसको कूल करेंगे उतना ही आपके पास कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी। अब होना तो ये चाहिए कि जब कभी भी हम वाटर को 4 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर रहे हैं, गर्म करने से होना क्या चाहिए? वाटर का गर्म होने ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करने से इसको एक्सपेंड करना चाहिए, लेकिन ये आपके पास क्या करता है? ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसी तरह 4 डिग्री सेंटीग्रेड से एबव अगर हम इसको हीट करते हैं 100 तक या वटेवर जितने तक हम इसको हीट कर रहे हैं, तो ये नॉर्मली आपके पास एक्सपेंड ही होता है जैसा कि बाकी लिक्विड होते हैं। और इसी बिहेवियर को हम कहते हैं पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ वाटर। और वाटर में एक यही फिनोमेना पाया जाता है कि आपके पास 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये बाकी नॉर्मल लिक्विड की तरह बिहेव नहीं करता, और जबकि बाकी नॉर्मल जितने भी लिक्विड्स होते हैं वो आपके पास 0 से चाहे हीट कर रहे हैं या 4 से अबव कर लें, वो नॉर्मली आपके पास एक्सपेंड होते रहते हैं। लेकिन आपके पास वाटर 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सपेंड नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसी तरह अगर हम कूलिंग की बात करें, इन द सेम वे व्हेन वाटर इज कूल डाउन फ्रॉम 100 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड इट कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म वाटर को कूल करना स्टार्ट करें 100 से 80, 40, 60 या 30, 10 इस तरह कूल करते जाएं, तो आपको पता है कि कूल करने से क्या होता है? आपके पास कॉन्ट्रैक्शन होती है। 100 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर हम टेम्परेचर लो करते जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन होगी, वाटर कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन व्हेन इट इज़ फर्दर कूल फ्रॉम 4 to 0 डिग्री सेंटीग्रेड इट एक्सपेंड एंड इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। लेकिन अगर हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम टेम्परेचर पे इसको कूल करेंगे, 3, 2, 1 या 0 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, तो उस टेम्परेचर पर ये ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने के बजाय ये एक्सपेंशन काज कर लेता है या एक्सपेंड हो जाता है। एक्सपेंड होने से इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसा होता क्यों है? एक्चुअली वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब आप इसको हीट कर रहे होते हैं या कूल कर रहे होते हैं, लेट्स सपोज मैं वाटर को कूल कर रहा हूँ अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वाटर आपके पास कूल होते होते आपके पास वाटर मॉलिक्यूल क्लोज आ रहे होते हैं, क्लोज आ रहे होते हैं। जब 4 से भी मैं नीचे इसको कूल करना चाहूँ तो वो एक ख़ास ज्योमेट्रिकल शेप में अरेंज हो जाते हैं, और ख़ास ज्योमेट्रिकल शेप में अरेंज होने की वजह से इनकी शेप बड़ी हो जाती है, और शेप बड़ी होने की वजह से इनका वॉल्यूम क्या हो जाता है? एक्सपेंड हो जाता है। इसीलिए हमें दिखता है कि आफ्टर 4 डिग्री सेंटीग्रेड इट arrange the molecule arrange itself in such a way that they get a geometrical shape, due to which the volume increases, and hence we can say that volume of a liquid below 4 degree centigrade increases. This increase in volume of water is as its temperature is lowered from 4 to 0 degree centigrade is known as anomalous expansion of water। और इसी एक्सपेंशन को बच्चों, यही एक्सपेंशन ऑफ वाटर जब हम लोअर करते हैं, टेम्परेचर को लोअर करते हैं 4 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड को, इसी को हम कहते हैं anomalous एक्सपेंशन ऑफ वाटर। क्लियर होगी बात? इसके हमारे पास डेली लाइफ में एक एप्लीकेशंस आ जाता है।
वी सी दैट अंडर फ्रोज़न वाटर, जब आपके पास सर्दियों में पानी के ऊपर बर्फ़ जम जाती है, जिसको हम फ्रोज़न वाटर कहते हैं, बर्फ़ के नीचे जो पानी होता है, एक्चुअली वो बर्फ़ जो पानी के ऊपर जम जाता है, नीचे उस पानी के अंदर फिशेस रहती हैं। और आपने अक्सर देखा होगा जो फ्रोज़न वाटर होता है, जिसके वाटर के ऊपर बर्फ़ जमी होती है, उस वाटर को आप टच करें तो आपके पास नॉर्मल रहता है, गर्म सा रहता है, ज़्यादा ठंडा नहीं होता। हालांकि होना तो ये चाहिए कि उसके ऊपर बर्फ़ है और वो ठंडा होना चाहिए। तो उसकी रीज़न ये होती है कि स्टूडेंट, आपके पास जो बर्फ़ होती है वो आपके पास इंसुलेटर होता है, और वो आपके पास इंसुलेटर का काम करता है, और वो हीट वगैरह को ट्रांसफ़र होने नहीं देता, या उसको ट्रांसफ़र होने नहीं देता। इसीलिए हमारे पास जो सर्दियों में फ्रोज़न वाटर के अंदर क्या होता है, फ्रोज़न वाटर के अंदर मछलियाँ या फिशेस आपके पास, या एक्वेटिक लाइफ जितनी भी है, वो सर्वाइव करती हैं। तो व्हाट आर द रीज़न? द रीज़न इज़ दैट why fishes survive in frozen water. We know that under frozen water during winter the aquatic life is able to survive in the water below the ice because it acts as a insulator. The ice acts as a insulator. Is that clear? I hope this is clear. And now come to the next topic, that is called thermometer. What is thermometer? The instrument used for measuring temperature is called thermometer. ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपके पास टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, उसको हम कहते हैं थर्मामीटर। फॉर एग्जांपल, आपको बुखार होता है तो डॉक्टर आपके मुंह में अक्सर ये एक ग्लास ट्यूब सी रख लेते हैं, जिससे वो टेम्परेचर को मेजर करते हैं, और इस ग्लास ट्यूब को एक्चुअली क्या कहते हैं? थर्मामीटर कहते हैं। A thermometer consists of glass tube, जिसको हम कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। थर्मामीटर को अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर आपके पास एक ग्लास ट्यूब होती है, जिस ग्लास ट्यूब को हम कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। द ग्लास ट्यूब इज़ फिल्ड विथ मरकरी, उसको मरकरी से फिल्ड किया जाता है। मरकरी स्टूडेंट आपके पास लिक्विड होता है, दैट एक्सपेंड इनटू द कैपिलरी ट्यूब व्हेन हीटेड। और वो मरकरी जो होता है, वो हीट करने से, थोड़ा सा भी हीट करने से वो एक्सपेंशन काज करता है, एक्सपेंड होता है, क्योंकि वो लिक्विड होता है, और लिक्विड को हीट अप करने से क्या होगा? वो एक्सपेंड होगा। तो थर्मामीटर एक ग्लास ट्यूब से बना होता है, जिसको हम कहते हैं कैपिलरी ट्यूब, और कैपिलरी ट्यूब के अंदर मरकरी होता है जो आपके पास एक्सपेंड होता है जब हम इसको हीट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? जो कैपिलरी ट्यूब होती है, इसके इर्द गिर्द आपके पास एक ग्रेजुएटेड ट्यूब होती है जो इसको सपोर्ट करती है। इसको ग्लास को के ऊपर एक ट्यूब सी लगाई होती है, जिसको हम कहते हैं स्टेम। ठीक है, आपकी बुक में डायग्राम गिवन है, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। कैपिलरी ट्यूब के ऊपर एक और मोटी ग्रेजुएटेड ग्लास चढ़ाया हुआ होता है, जिस ग्लास को कहते हैं बच्चों स्टेम। और द कैपिलरी ट्यूब हैज़ अ कंस्ट्रिक्शन जस्ट अबाउट द बल्ब विच प्रिवेंट द मर्करी फ्रॉम फॉलिंग बैक ड्यूरिंग एक्सपेंशन। और जो कैपिलरी ट्यूब होती है, जिसके अंदर बच्चों आपके पास होता है मर्करी, उसकी जो अपवर्ड सरफेस होती है, उसको बंद किया जाता है, ताकि मर्करी जो है वो आपके पास वहाँ से आफ्टर एक्सपेंशन बाहर ना निकले। सो दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मामीटर। तो इसकी डायग्राम आपकी बुक में गिवन है, वहाँ से आप इसकी डायग्राम को भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही। चलिए एक बार फिर हम मेन पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। द फर्स्ट मेन पॉइंट ऑफ टुडे लेक्चर इज यूजेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। All liquid expand more as compared to solid. Mercury and alcohol are used in thermometer. However, as boiling point of mercury is very high as compared to alcohol and its uniform expansion, that is why it is preferred over alcohol in thermometer.
Next main point is peculiar behavior of water. Liquid expand on heating and contract on cooling, but the expansion of water is a little different from the expansion of other liquids. We see that when water is heated from 0 degree centigrade to 4 degree centigrade, it contracts instead of expanding, and when it is further heated from 4 degree centigrade up to its 100 degree centigrade, it expands like other liquids. In the same way, when water is cooled down from 100 degree centigrade to 4 degree centigrade, it contracts, but when it is further cooled from 4 to 0 degree centigrade, it expands and its volume increases. So that's why we can say that ice float on the surface of water, because the density of ice is less than as compared to water. The increase in volume of water as the temperature is lowered from 4 to 0 degree centigrade is known as anomalous or peculiar behavior of water. And the application of peculiar behavior of water is that under frozen water during winter, the aquatic life is able to survive in the water below the ice because it acts as a insulator. And the last and fourth main point is thermometer. The instrument used for measuring temperature is called thermometer. A thermometer consists of glass tube called capillary tube. The glass tube is filled with mercury that expands into the capillary tube when heated. The capillary tube is surrounded by a thick graduated glass tube called stem. The capillary tube has a construction just above the bulb which prevents the mercury from falling back to during expansion. This is all about the main points of today's lecture. Student, you should memorize the peculiar behavior of expansion and contraction of water, which is very important question for your board exam. And now come to the homework. Describe the uses of expansion and contraction of liquid in our daily life. ये क्वेश्चन आपको जो आपको नोट्स गिवन है उसमें भी गिवन है, तो वहाँ से भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। और आज के लेक्चर में आपको जो मेन पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि पेक्युलर बिहेवियर ऑफ वाटर, इसको आपने याद रखना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप ऑल मेन पॉइंट इज़ क्लियर नाउ। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तक अपना ख्याल रखिएगा, एंड जो भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।